خداوند کے مقدس کلام میں سے سلاطین کی دوسری کتاب، دوسرا سلاطین اس کا 22واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کو ہم پڑھیں گے۔ سلاطین کی دوسری کتاب 22واں باب پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو 8 برس کا تھا۔ اس نے 31 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام جدیدہ تھا جو مسکتی ادایا کی بیٹی تھی۔ اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نگاہ میں ٹھیک تھا، اور اپنے باپ داؤد کی سب راہوں پر چلا اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو مطلق نہ مڑا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا آپ سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ تھوڑا تھوڑا آگے ہو کر بیٹھ جائیے۔ خداوند کے حضور میں ہم سب موجود ہیں۔ آئیں زوردار تالیاں بجائیں خداوند کے لیے، اس کے کلام کے لیے جو معتبر ہے، اعلیٰ ہے اور خدا کی وہ آواز ہے جس کے وسیلہ سے خدا حالات کو بدلتا ہے۔ کتاب مقدس میں سے ہم نے سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 22واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت کو سنا ہے اور پڑھا۔ کون سی کتاب پڑھی ہے؟ دوسرا سلاطین۔ باب کون سا ہے؟ آیات کون سی ہے؟ پہلی اور دوسری آیت۔ پرانے عہد نامہ کے اندر سلاطین کی کتاب جو ہے وہ ہمیں مختلف بادشاہیوں کے بارے میں بتاتی ہے، اور یہ کتاب تاریخ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں آج ہم نے ایک بادشاہ کا ذکر سنا، اس کا نام بتایا گیا ہے یوسیہ۔ کیا نام ہے؟ یوسیہ۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جب 8 برس کا تھا۔ کتنے برس کا؟ 8 برس کا تھا۔ اس وقت وہ بادشاہ بطور بادشاہ سلطنت کرنے لگا۔ 8 برس کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ لیکن خدا جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے اپنے جلال کے لیے اٹھا کر کھڑا کر۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ داؤد 12 سال کا تھا، چھوٹا تھا، بچہ تھا۔ خدا نے اس کے وسیلہ سے ایک بڑے پہلوان کو زمین پر گرا دیا۔ زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی، ایک ہی پتھر لگا اور جاتی جولیت زمین پر گر گیا۔ کیوں گرا؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ۔ تو خدا جسے چاہتا ہے اسے استعمال کرتا ہے۔ اسرائیل کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو ایک طرف اسرائیل کی حکومت ہوتی تھی، دوسری طرف یہودا کی۔ دونوں حکومتوں میں ہی خدا اپنا کام کرتا تھا۔ دونوں ہی حکومتوں میں خدا اپنی مرضی کو پورا کرتا تھا۔ دونوں ہی بادشاہوں سے جو چنے جاتے ان سے اپنا کام لیتا تھا۔ کچھ اچھے بادشاہ آئے، کچھ برے بادشاہ آئے۔ جب اچھے آتے تو مملکت ترقی کرتی، لوگ خوش ہوتے، لیکن جب برے آتے تو کیا ہوتا؟ رعایا روتی، پریشان ہوتی۔ یہ بادشاہ جس کا ذکر سنا کہ 8 سال کا تھا اور اس نے 31 برس، کتنے برس؟ 31 برس یروشلم پر سلطنت کی۔ 31 سال، تو گویا 8 سال کا تھا تو 31 سال بعد اس کی عمر 39 سال ہو گئی۔
39 साल का जब हुआ तो ये फारिग भी हो गया अपने काम से, और हम कह सकते हैं कि बचपन से लेके जवानी में ही इसने वो काम किया जो एक यादगार काम है। आज हम इसकी ज़िंदगी से चंद एक बातें सीखेंगे। पहली बात यह है, इसकी ज़िंदगी से बहुत से असबाक मिलते हैं, लेकिन पहली बात हमें जाननी होगी कि इसके नाम का मानी यूसिया, अंग्रेजी में है जोसिया। यूसिया का मानी है गॉड हैज़ हील्ड, यानी खुदावन शिफा देता है। क्या मानी है? खुदावन शिफा देता है, इसके नाम का मानी। और याद रखें कि जब नाम रखा जाता है तो पहचान बनती है। फिर नाम जो है वो इंसान की ज़िंदगी को जाहिर करता है, किरदार को जाहिर करता है। यहाँ तक कि हमें किसी भी शख्स के बारे में अगर जानना हो, समझना हो, बताना हो तो हम उसका नाम लेते हैं। जब भी नाम लेते हैं तो अगले के सामने उसकी पूरी तस्वीर आ जाती है। इसी तरह से मैं कहूँगा, अगर आप खुदा के बारे में जानना चाहते हैं तो खुदा के नामों को याद करें। ये बादशाह जिसका नाम यूसिया है, इसके नाम का मानी है खुदावंद शिफा देता है। जब ये बादशाह बना है, 8 साल का बादशाह बना है, तो इसने जितने काम किए हैं, आज हम 3 कामों पर गौर करेंगे। वो तीनों ही काम उसकी ज़िंदगी से कौम की शिफा को रिलीज़ करते थे। कौम को शिफा मिली, कौम को रहाई मिली, कौम जो है वो इस लायक बनी कि वो तंदुरुस्त हो गई। पहले नंबर पर यह है कि उसने वो काम किया, दूसरी आयत में लिखा है वो काम किया जो क्या था, जो खुदावंद की निगाह में क्या था, ठीक था। आवाज़ कम आती है, भला क्यों? सर्दी आ रही है। एक और भी वजह है, आवाज़ कम क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास पढ़े लिखे लोगों के पास भी बाइबल नहीं होती। हम ऐसे ही स्कूल तो आ जाते हैं, लेकिन बसते घर बोल आते हैं। तो पहला काम उसने क्या किया जी? जो खुदावंद की निगाह में क्या था, ठीक था, वो किया। और अपने बाप दाऊद की सब राहों पर चला है। क्या ठीक किया उसने? कि अपने बाप जैसे काम किए। बाप किसका नाम लिया गया है? दाऊद का नाम लिया। दाऊद बड़ा मशहूर है, हम सब दाऊद से वाकिफ हैं। तो गोया हम कह सकते हैं कि ये दाऊद की नस्ल में से था। दाऊद की नस्ल में से ये बादशाह जिसका नाम यूसिया है, जिसके नाम का मानी खुदावंद शिफा देता है, इसने वो किया जो खुदावंद की निगाह में ठीक था, और अपने बाप दाऊद की सब राहों पर चला, और उन राहों से ना दाहिने ना बाएं हाथ को मुतलिक मुड़ा। मुतलिक का मतलब है कि बिल्कुल नहीं मुड़ा, गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि कोई कहे जी ये अपने बाप दाऊद जैसा नहीं। जहां मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आज सुबह मैं ये कहूंगा कि जरा ख्याल ही ख्याल में अपनी आंखें बंद करके गौर करें कि आपका बाप दादा कैसा था। हो सकता है आप कहें कि वो अच्छे नहीं थे, लेकिन कोई ना कोई खूबी तो थी उनमें। मैं ये कहूँगा कि अगर आपके बाप, आपके दादा दूसरों का भला करते थे, नेक अमाल करते थे, खुदा से प्यार करते थे, तो फिर आपको भी यूसिया की तरह अपने बाप दादा की उन बातों को याद करके उन जैसे काम करने की जरूरत है। फिर ही कोई तीसरा बंदा कहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में जब खुदा की अदालत होगी तो खुदा कहेगा कि तूने अपने बाप दादा जैसा काम किया, तू फलां की नस्ल में से था, तूने ठीक किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आओ खुदा के साथ अहद बांधे कि हम अपने बाप दादा के अच्छे कामों को जरूर किया करेंगे।
ضرور کیا کریں گے. وہ کام آپ بہتر طور سے جانتے ہیں, اچھے کام. اپنے سر کو اٹھائیں گے, ذرا اپنے آباء و اجداد پر نظر دوڑائیں. جب بھی بات ہوتی ہے لوگ اپنی گویاں سناتے ہیں تو اکثر اوقات اپنے باپ دادا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ جی خدا سے دور تھے. ٹھیک ہے, ان تک روشنی نہیں پہنچی تھی, ہوں گے ایسے, لیکن اگر آپ غور کریں تو میری دانست میں یہ ہے کہ جتنی محبت ان میں پائی جاتی تھی آج کے دور میں لوگوں میں پائی نہیں جاتی. وہ اگر کسی سے وعدہ کرتے, یہاں تک کہ کسی کو منہ بولی بہن بھی کہتے, منہ بولا بھائی کہتے, تو پھر اس کی لاج رکھتے. آج کے دور میں ہم جس مقام پر ہیں شاید ہم اس طرح سے نہیں کر رہے. پھر آپ دیکھیں انہوں نے ہی, ہمارے باپ دادا میں سے ہی کسی نے مسیحیت کو قبول کیا, کیونکہ ہم جس خطے سے ہیں یہاں پر تو ہندو رہتے تھے, یہاں پر تو سکھ رہتے تھے, یہاں پر تو والمیک رہتے تھے, یہاں پر ایسے تہمت پرست لوگ رہتے تھے کہ جو خدا کو نہیں جانتے تھے, پریوں پر ایمان رکھنے والے, دیویوں پر ایمان رکھنے والے, دیوے بالنے والے, سانپوں کو پوجنے والے, بتوں کی پوجا کرنے والے وہ تھے. لیکن ہمارے خاندان میں سے, ہماری نسل میں سے, ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے پہچان کی کہ مسیح کون ہے, مسیحیت کیا ہے, اور جب اس نے قبول کر لیا تو ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی. ہم نے آنکھ کھولی تو ہمارے گھروں میں گایا جاتا تھا رب خداوند. ہم نے آنکھ کھولی تو ہمارے ارد گرد گایا جاتا تھا گھر گھر میں انجیل سنائیں گے. ہم نے کوئی محنت کی, ہم نے تو آنکھ کھولی, لیکن آوازیں آئیں اڑوس پڑوس سے. پھر ہمارے ماں باپ جو تھے ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, انہوں نے ہمیں گرجے کی راہ دکھائی, چرچ کی راہ دکھائی, ہم چرچ جانا شروع ہوئے. اس آج کے دور میں اور اس دور میں ذرا نگاہ دوڑائیں, آج تو چرچ جو ہے وہ ہمارے گھر سے جو ہے 5 منٹ کی دوری پر ہوتا ہے, لیکن وہ دور یاد کریں جب لوگ 5 کوس گھنٹہ گھنٹہ پیدل چل کے چرچ جاتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں وہ محنت سے جاتے تھے, اس لیے خدا کے گھر کی بڑی قدر بھی تھی, ویلیو بھی تھی. آج جگہ جگہ گرجے ہیں, گرجوں کی دیواریں جو ہیں وہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں, ہمارے گھر کے چاروں اطراف میں 2-3 گرجے ہوتے ہیں, پھر بھی ہم اپنے باپ دادا جیسی عقل نہیں رکھتے, حکمت نہیں رکھتے, محبت نہیں رکھتے, دنائی نہیں رکھتے, خدا کے پاس جانا پسند نہیں کرتے. لکھا ہے اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نگاہ میں کیا تھا, ٹھیک تھا, اور ٹھیک کی مثال دی اس نے. کیا ٹھیک تھا جی؟ اپنے باپ داؤد کی سب راہوں پر چلا, داؤد کی مثال دی. کاش کہ جب ہماری کوئی بات کرے تو ہمارے باپ دادا کی مثال دے, اور جب ہماری مثال دے کر کوئی ہمارے باپ دادا کی مثال دے گا تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے خاندان کا نام کیا کیا ہے, روشن کیا ہے. اور یاد رکھیں نام روشن ایسے ہی نہیں ہوتے, خاندانوں کے نام, گھرانوں کے نام, ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. ورنہ کیا ہے, بندہ غلطی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کدھر ہے تو, کہتے ہیں پھر بتاتے ہیں نا ہم, میں فلاں کا بیٹا, کہتے ہیں تیرا ابا تو ایسا نہیں تھا, تیری ماں تو ایسی نہیں تھی. کیوں جی؟ لیکن جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں اس کا باپ بھی ایسا تھا, اس کا دادا بھی ایسا تھا. تو یوسیہ کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے وہ کام کیا جو اس کا باپ داؤد کرتا تھا, وہ اپنے باپ دادا کی سب راہوں پر چلا. سب راہوں پر چلنے سے مراد یہ ہے جہاں جہاں قدم داؤد کے ٹکے وہ بھی ٹکاتا گیا. سب کام, نہ ان سے بائیں مڑا نہ دائیں مڑا, گرنٹیڈ بات ہے, لکھا مطلق نہیں مڑا. دوسری بات اس نے جب بادشاہ سنبھالی, ہے بچہ لیکن کام بڑوں والے. کیا کام کیا جس نے,
अगली आयत हमें ये बताती है कि उसने एक बड़ा काम किया। 5वीं आयत से पढ़ूंगा, बल्कि 4 से लिखा है, तू खलकिया सरदार कहन के पास जा ताकि वो उस नकदी को जो खुदावंद के घर में लाई जाती है जमा किया है गिने, और वो उसे उन कारगुजारों को सौंप दे जो खुदावंद के घर की निगरानी रखते हैं, और ये लोग उसे उन कारीगरों को दें जो खुदावंद के घर में काम करते हैं, ताकि हैकल की दरारों की मरम्मत हो। हैकल किसने बनाई? जोर से बोले। सोचता कौन था? कौन कि मैं बनाऊंगा? दाऊद सोचता था, लेकिन बनाई सुलेमान ने। खुदा ने उसको फजल दिया। और याद रखे, खुदा का घर हर कोई नहीं बना सकता, वही बना सकता है जिसको खुदा की। सुलेमान ने हैकल बनाई, मगर इसने अपने दौर के अंदर आकर देखा कि हैकल की दीवारों के अंदर दरारें आ गई हैं। क्या आ गई हैं? दरारें। इसने एक बंदे को मुकर्रर किया और उसको भेजा। उसका नाम साफन था। इसने अपनी हुकूमत के 18वें बरस में ये काम किया। गोया 18 और 8 कितने हो गए? 24 साल। 24 साल का है, लेकिन सोच देखें, इसने दरारों की मरम्मत का काम शुरू करवाया। और आगे हम बढ़ते जाएं तो हमें मालूम होता है 8वीं आयत तक कि जो काम उसने सुपुर्द किया था, उन काम लेने वालों ने भी वो काम बड़ी दयानतदारी से किया। हैकल की मरम्मत करवाई गई, खुदा के घर को ठीक किया गया, सेट किया गया। आज मैं ये कहना चाहूंगा, दुनिया के अंदर हम इस बादशाह से ये दूसरी बात सीख सकते हैं कि खुदा के घर को हमने मिलकर क्या करना है? ठीक करना है। एक तो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग जिसमें हम इबादत करते हैं, इसकी मरम्मत, इसकी देखभाल। मैं शुक्रगुजार हूं खुदा का खादम होते हुए उन बहनों का, उन बेटियों का, उन तमाम लोगों का जो खुदा के घर की निगरानी करते हैं, खुदा के घर का ख्याल करते हैं, खुदा के घर की सफाई तक करते हैं। आए उनके लिए जोरदार तालियां। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जो काम आप आकर नहीं कर सकते, चलो कोई बात नहीं, कम से कम जो करते हैं उनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए ना, उनका हौसला तो बढ़ाना चाहिए। और आने वाले दिनों में, अभी अक्टूबर की आज कितनी डेट है? सारन नहीं पता। 17 तारीख है। 17 तारीख है। और तकरीबन आप देखें अगले 17 को जो है एक महीना, फिर उससे अगले 17 को दूसरा महीना, फिर 7 दिन बाद क्रिसमस। तो क्रिसमस की तैयारी अगर हम यह अभी से करें तो खुदा का घर, मैं समझता हूं सारे मिलके करेंगे ना, खुदा का घर जबरदस्त किस्म का खूबसूरत लगेगा। आमीन। अभी से हम सब माइंड बनाएंगे कि मैं क्रिसमस के लिए अपने खुदा के घर में क्या कर सकता हूं, क्या कर सकती हूं, कौन सी चीज है जो मैं लाकर इसकी दीवार को सेट कर सकती हूं, कर सकता हूं, या मैं किस काम में हाथ बटा सकता हूं, सफाई में, पेंट में, या दीगर चीजों में, जिसमें भी हम कर सकते हैं। इस बादशाह ने क्या किया? खुदा के घर की हालत देखी तो क्या हुआ? होना तो ये चाहिए हर वक्त खुदा का घर ऐसे लगे जैसे दुल्हन, अच्छा बैठने को दिल चाहे, खूबसूरत लगे। हम सब खुदा के घर के अंदर हैं। और मैं ये कहूंगा, हम अक्सर दावा करते हैं ये हमारा गिरजा है, हमें ये कहते हैं ना, ये हमारा क्या है? चर्च है। लेकिन हमारे का पता उस वक्त लगता है जब कहना पक्खा ऑन कर दो तो पक्खे से सोच लो ही पता ना होए, तो फिर हमारा है जी, क्यों जी? फिर इसका मतलब हमारा नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। कई बार ऐसा होता है, किसी बच्चे को कह देना अच्छा जरा पक्खा स्लो कर दो या पक्खा ऑन कर दो,
वो सारे बटन ऑन करेगा, ऑफ करेगा। मैं कहता हूँ हमारे 8 साल के बच्चों को पता होना चाहिए कि पंखा किधर से ऑन होता है, लाइट किधर से ऑन होता है। तो हम इस बादशाह के इस सबक को भी लेंगे, हम खुदा के घर की मरम्मत करेंगे। ठीक है, ये ईंटों का घर नहीं है बल्कि खुदा का घर। लिखा है, पालूस ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो? क्या हो जी? मकदस हो। मकदस घर होता है, रूहानी घर। तुम यानी मैं और आप, हमारे बदन खुदा का क्या है? मकदस। हम भी अपने बदन के बादशाह हैं, जैसा चाहे इसके साथ सलूक करें। लेकिन आओ आज थोड़ा सा गौर करें कि हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसको मरम्मत कैसे कर सकते हैं। मरम्मत बच्चों की माँ करती है। इधर मैं तरीकी करा मरम्मत। पालूस क्या कहता है? पालूस कहता है मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूं। क्यों मारता कूटता है? ताकि बदन ठीक हो जाए, बदन की मरम्मत हो जाए। गाड़ी की जब मरम्मत होती है तो क्या होता है? वो डेंटल, जब उसके पास जाना, कभी छोटे थोड़े। पिछले दिनों मुझे इत्तेफाक हुआ, वो साहब जी के पास गाड़ी ले गया था मैं, साहब तो उसके पास मैं ले गया। कुछ गंट थे तो उसने क्या किया, पहले छोटी थोड़ी, बस उस बाद में उसने देखा ये काम नहीं कर रही, उन्हें एक बटाया थोड़ा पड़ा और इतनी जोर से मारा कि मेरे दिल को कुछ होने लगा कि ये क्या कर रहा। तो हमारे बदन को भी कभी छड़ी की जरूरत है, कभी डंडे की जरूरत है, कभी मारने की जरूरत है। सेट करना है हमने। क्यों? इसलिए कि अगर ये सेट नहीं होगा तो खुदावंद इसे वहां डालेगा जहां रोना और दांतों का। हैकल की मरम्मत, अपने बदन की मरम्मत। फिर इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर कलीसिया क्या है? कलीसिया मसीह का बदन है, ये भी हैकल है। ऐसी इमारत है कि जिसको हमने सेट करना है। कैसे? एक दूसरे का ख्याल करके। लेकिन यहां तो ये हाल होता है कि अगर कोई साथ आई के बैठ ही जाए ना, तो हम उसके लिए इतनी जगह तंग कर देते हैं, इतनी तंग कर देते हैं। अगर वो नया आया ना, अगली बार वो कहेगा मैं इतने नहीं होना चाहिए, तो लोग की तंग ही बड़ा करता है। दूसरे को मौका देना कि वो आराम से बैठकर खुदा की आवाज को क्या करे जी, सुने। फिर हम दुनिया के अंदर निकल सकते हैं कि वो लोग जो ठीक नहीं, उन तक अंजील लेकर जा सकते हैं ताकि वो खुशखबरी सुने और क्या पाए जी, निजात। तीसरी बात यूसिया की जिंदगी से हम देखते हैं कि जब खुदावंद के घर की निगरानी हो रही थी, तो हम नामी आयत से पढ़ेंगे। नामी आयत से पढ़ेंगे, लिखा है और साफन मुंशी बादशाह के पास आया और बादशाह को खबर दी कि तेरे खादमों ने वो नकदी जो हैकल में मिली लेकर उन कारगुजारों के हाथ में सुपुर्द की जो खुदावंद के घर की निगरानी करते हैं। और साफन मुंशी ने बादशाह को ये भी बताया, गौर से सुने, उसने ये भी बताया कि खिलकिया काहिन ने एक किताब, क्या जी, एक किताब मेरे हवाला की है। और साफन ने उसे बादशाह के हुजूर पढ़ा। जब पढ़ा तो बादशाह ने क्या किया जी, सुना। इसकी जिंदगी से हम देखते हैं बादशाह, लेकिन जो किताब खुदा के घर से मिली है उसको सुनने वाला है। हम जितने मर्जी ओहदे रखें, हमें खुदा के कलाम को क्या करना है, सुनना है। अगर कलाम नहीं सुनेंगे, लिखा ना, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। उसने कलाम को सुना, लिखा है उसने कहा कि जो किताब मेरे हवाला की है, साफर ने उसे बादशाह के हुजूर पढ़ा। और जब बादशाह ने तौरेत की किताब की बातें सुनी, कौन सी किताब मिली थी? तौरेत।
तौरात की किताब की बातें सुनी तो क्या किया जी? अपने कपड़े फाड़े और बादशाह ने खिलकिया काहिन और साफन के बेटे अखीखाम और मकाया के बेटे अकबूर और साफन मुंशी और असाया को जो बादशाह का मुलाजम था ये हुक्म दिया कि ये किताब जो मिली है इसकी बातों के बारे में तुम जाकर मेरी और सब लोगों और सारे यहूदा की तरफ से खुदावंद से दरियाफ्त करो, क्योंकि खुदावंद का बड़ा गज़ब हम पर इसी सबब से भड़का है कि हमारे बाप दादा ने इस किताब की बातों को ना उसमें हमारे बारे में लिखा है उसके मुताबिक अमल करते। रोया क्यों था? तौरात पढ़ी गई, हालांकि वो दाऊद की तरह काम करने वाला शख्स है, लेकिन जब किताब सुनी तो सिर्फ दाऊद उसकी निगाह में नहीं आया, बल्कि उसके सामने सारे आबाओ अजदाद आ गए और पूरी कौम आ गई, अपना आप भी आ गया और वो कहने लगा जो कुछ किताब में लिखा है हमारी कौम, हमारे बाप दादा उसके मुताबिक काम नहीं करते रहे, इसलिए लिखा है उसने कपड़े क्या किए जी? फाड़े। क्यों फाड़े? क्योंकि उसे रंज पहुंचा, दुख आया। आज मैं ये कहूंगा कि हमें भी अपनी कौम की हालत पर ना सिर्फ गौर करने की जरूरत है, खाली डायरियां बनाने की बात नहीं हम करनी चाहिए, बल्कि कौम के लिए हमें दर्द रखने की क्या है जी? कई बार हम दूसरों के ऐप बड़े जानते हैं, लेकिन अगला काम क्या है? जब जाने तो क्या करें जी? गुनाहगारों के लिए क्या करें? दुआ करें। क्या दुआ करें? कि वो क्या पा जाएं? नजात पा जाएं। और यूसिया ने कपड़े फाड़े, और ना सिर्फ कपड़े फाड़े बल्कि वो खुदा के हुजूर चिल्लाया भी। आगे बढ़ते हैं, मैं शार्ट करूंगा कि उसने गौर किया, 17वीं आयत भी पढ़ लें, लिखा है क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और गैर मबूदों के आगे बखूर जलाया। ये काम कर रहे थे उसके लोग, गैर कौमों के मबूदों के आगे बखूर जलाते थे ताकि अपने हाथों के सब कामों से मुझे गुस्सा दिलाएं, यानी खुदा को। सो मेरा कहर इस मकाम पर भड़केगा और ठंडा ना होगा। लेकिन शाह यहूदा ने क्या किया जी? सिर्फ कपड़े नहीं फाड़े, बल्कि लिखा है लेकिन शाह यहूदा ने, यहूदा से जिसने तुमको खुदावंद से दरियाफ्त करने को भेजा है, यूं कहना कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि जो बातें तूने सुनी हैं इनके बारे में ये है कि चूंकि तेरा दिल नरम है, तेरा दिल क्या है जी? नरम है। तू महसूस करता है कि गुनाह करना अच्छा नहीं है, तू महसूस करता है कि कौम की बुरी हालत अच्छी नहीं है, तेरा दिल नरम है। और जब तूने वो बात सुनी जो मैंने इस मकाम पर और उसके बशिंदों के हक में कही कि वो तबाह हो जाएंगे और लानती भी ठहरेंगे, तो तूने खुदावंद के आगे आजिज़ी की और अपने कपड़े फाड़े और मेरे आगे रोया। कपड़े फाड़े और मेरे आगे क्या किया जी? रोया। तो दाऊद ने कहा था सुनेगा रब रोना तेरा नाले सब, और लिखा है सो मैंने भी तेरी क्या की है जी? सुन ली। गोया उसका रोना काम कर गया। और आज मैं ये कहूंगा, आखिरी बात हम यूसुफ से ये सीख सकते हैं कि हमें अपनी कौम के लिए आंसू बहाने की जरूरत है, हमें एक दूसरे के लिए आंसू बहाने की जरूरत है। एक मौका पर जब यीशु जा रहा था सलीब उठाकर, तो औरतें रो रही थी और रोकर क्या कहती है? यीशु हम तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए रोती हैं। यीशु ने क्या कहा था? मेरे लिए ना रो, बल्कि अपनी औलाद के लिए रो, अपने लिए रो, क्योंकि जब हरे दरख्त के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे के साथ क्या कुछ किया जाए। तो यूसिया रोया, दरख्त सूख चुका है। कौम इस्राएल की हालत जो है वो ऐसी नहीं कि उस पर खुशी की जाए, शादमानी की जाए।
आज मैं ये कहूँगा, अगर आप अपनी कौम पर निगाह करें, हमारी कौम की हालत भी खुशियाँ मनाने वाली नहीं, बल्कि इस पर आंसू बहाने की ज़रूरत है, रो रो कर दुआएं मांगने की ज़रूरत है। और अगर हम रोएंगे, फरियाद करेंगे, तो खुदा हमारी फरियादों का जवाब देगा, वो सुन लेगा। उस पर देखिए, उस कौम पर खुदा का गज़ब भड़का, खुदा गुस्से में आया, खुदा उनके खिलाफ हो गया और खुदा का कहर उन पर भड़क उठा था। आज अगर आप गौर करें तो ना सिर्फ पाकिस्तान पर बल्कि पूरी दुनिया पर खुदा भड़का हुआ है। ये जो वो बात 2-3 साल से काम कर रही है, ये क्या है? ये खुदा का गुस्सा है, खुदा का कहर है। फिर अभी वो थोड़ा थोड़ा उसकी खबर हम भूल रहे थे, बीच में एक और आ गया है, क्या? डेंगी। और मैं आपको बताऊं कि ना सिर्फ एक इलाके की बात है, बल्कि पूरे शहर इस्लामाबाद के अंदर हर तीसरे घर के अंदर हम देख रहे हैं ऐसी रिपोर्टें। मैं देख रहा था पिछले जुमेरात को हॉस्पिटल, एक अस्पताल के अंदर इत्तेफाक हुआ जाने का। इनको रोकने का एक ही काम है कि हम भी ऐसे बन जाएं, ऐलान करें कि खुदावंद शिफा देता है। यूसिया का नाम ही ये था कि खुदावंद शिफा देता है। तो उसने उस काम को, नाम को जो इस्तेमाल किया, अपनी शख्सियत को इस्तेमाल किया। क्या कुछ किया उसने बाप दादा की राहों पर दाऊद जैसा काम किया। नंबर 2, उसने खुदा के घर की मरम्मत कराई। नंबर 3, उसने खुदा की आवाज़ को सुना। नंबर 4, जब आप खुदा की आवाज़ को सुना तो अपने दिल को सख्त ना किया, बल्कि अपने कपड़े फाड़े और रोया, खुदा से फरियाद की, खुदा से दुआ मांगी, खुदा से माफ़ी मांगी। खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया और कहा, चूंकि तेरा दिल नरम है, जब तूने वो बात सुनी जो मैंने इस मकाम पर और इसके बाशिंदों के हक में कही कि वो तबाह हो जाएंगे और लानती भी ठहरेंगे, तो तूने खुदावंद के आगे आजिज़ी की और अपने कपड़े फाड़े और मेरे आगे रोया, सो मैंने भी तेरी सुन ली। खुदावंद फरमाता है, इसलिए देख मैं तुझे, गौर से सुनना, खुदावंद ने कहा, देख मैं तुझे तेरे बाप दादा के साथ मिला दूंगा और तो अपनी गोर में क्या करेगा? सलामती से उतार दिया जाएगा, सलामती से उतार दिया जाएगा। और उन सब आफतों को जो मैं इस मकाम पर नाज़िल करूंगा, लिखा है, तेरी आंखें नहीं देखेंगी। हालांकि खुदा ने इरादा किया कि इस कौम पर आफतें आएंगी, लेकिन खुदा ने इसके रोने पर निगाह की, इसकी जिंदगी पर निगाह की, इसकी आजिज़ी को देखा और कहा, तेरे दिनों में ऐसा नहीं होगा। काश के खुदा हमारे दिनों में भी कहे, तेरे दिनों में ऐसा नहीं, क्योंकि एक बड़ी मुसीबत आने वाली है। कलाम में लिखा है, वो ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि ना दुनिया के शुरू में हुई, ना दुनिया के आखिर में, आज तक किसी ने नहीं देखी, बड़ी मुसीबत। और उसको बाइबल मुकाशों की किताब 7 साल का बड़ी मुसीबत का अरसा कहते हैं। लेकिन मुबारक है वो जो मसीह की पहली का क़यामत में शरीक होकर आसमान पर चले जाएंगे, वो उस बड़ी मुसीबत को नहीं देखेंगे। ज़मीन पर दुनिया दुख देखेगी, लेकिन वो यीशु के साथ आसमान पर। हमें ऐसा करने की ज़रूरत है, और ये तभी मुमकिन होगा अगर हम यूसिया की ज़िंदगी से ये 3-4 बातें सीखें। नंबर 1 क्या था जी? उसने अपने बाप दाऊद जैसा काम किया। मैं ये कहूँगा, एक बार फिर कहूँगा, जोर दे के कहूँगा, अपने पूरे आबाओ अजदाद पर निगाह करो, कोई ना कोई बंदा तो चंगा होएगा ना जिन्हें मुझे बन सके, कि नहीं बन सकता। फिर जैसे उसने खुदा के घर की मरम्मत करवाई, हमें भी खुदा के घरों की वैल्यू को जानना है, कदर को जानना है, और फिर अपने बदनों को खुदा का मक़दस बनाना है, साफ़ सुथरा बनाना है। फिर नंबर 3 ये है, खुदा की आवाज़ को हमने क्या करना है? सुनना है। नंबर 4 ये है, जब सुने तो अपने दिलों को सख्त न करें। दुआ होगी। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हालेलुया।